Assalamu alaikum class 6. How are you all? Students, we are doing our unit number 4, Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. Today we have to done writing focus of this unit, and in this writing focus we have topic about literal questions. Questions होते हैं different types के होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे साथ पास है literal questions. Literal question कैसे होते हैं? Questions are of different types. Literal questions are the ones where we can find the answers directly in the text. Literal question वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका हम आंसर डायरेक्टली टेक्स्ट के अंदर पढ़ने से निकाल सकते हैं. To answer them well, we need to read the text very carefully and find the exact words that tell us what the question asks. ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमने क्या करना होता है, टेक्स्ट को या हमें जो मवाद दिया जाता है उसको गौर से ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और एग्जैक्ट वर्ड्स फाइंड करने हैं. जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर हम इसमें से निकाल के दे सकते हैं. ठीक है, तब क्वेश्चन देख लेते हैं हमने. यस, रीड द गिवन लिटरल क्वेश्चंस. लिटरल क्वेश्चंस आर दोज which have answers in the text we have read or we are going to read. What is the title of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu? Do you know what is the title of हज़रत उमर फ़ारूक को अभी की सेशन में क्या टाइटल दिया था? जी हाँ, अल फ़ारूक का टाइटल उनको दिया गया था, जिसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करने वाला, ट्रू एंड फॉल्स के दरमियान में, मतलब सही और गलत के दरमियान में फ़र्क करने वाला. अच्छा जी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा अपने टेक्स्ट में से. लुक हियर, his name was Umar and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave him the title of Al Faruq. And what is the meaning of Al Faruq? Meaning the one who distinguishes between the right and the wrong. ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? क्या टाइटल दिया था उनको? अल फारूक. ठीक है, आंसर हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अपनी नॉलेज के लिए या हमें एलेबोरेट करना चाहे क्वेश्चन तो हम आंसर तो हम लिख सकते हैं अल फारूक, मीनिंग दैट वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हम आंसर देते हैं और टेक्स्ट में हमें इसका एग्जैक्ट आंसर भी नज़र आ गया. सही है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम्स डिड हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एस्टैब्लिश इन हिज रीन. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में कौन कौन से सिस्टम या निज़ाम जो थे उनको इस्टेब्लिश किया या मुतारिफ़ कराया. तो क्या कुछ उन्होंने किया था? Look at this. After the death of Abu Bakr Siddiq Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu took over as second caliph. He was a great example of leadership. He followed in the footsteps of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to the fullest extent. He is known for his bravery and justice in the history of Islam. It was Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu under whose rule Islam became a great force. अब यहाँ से उनके सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं. He provided easy and immediate justice to everyone. He was an excellent administrator who originated an efficient system of administration. एक सिस्टम ये होगा, system of administration. He was the real founder of the political system of Islam. पहला system of administration, फिर system of political system of Islam. He gave stipend to the poor and children. He introduced rules and regulations and implemented them in the state. There was complete rule of law while he was in office. He improved agriculture and economy. He looked after his people in all aspects. ठीक हो गया. ये सारे सिस्टम थे जो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी दीन के दौरान जो है वो उनको इस्टेब्लिश कराया. हज़रत उमर फ़ारूक conquered many areas during his caliphate. He conquered grand empires of Rome and Iran. He brought an area of approximately 22 lakh square miles under Islamic rule during 10 years of his reign. अपनी इस 10 साल की हुकूमत के दौरान इनके तमाम सिस्टम जो है डेवलप कराया. तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखने की बजाय आप उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पहला सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कराया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, 5 सिस्टम आप इजीली लिख सकते हैं. ठीक है, जो यहाँ से आपको डायरेक्टली इसका आंसर भी यहाँ से मिल सकता है. Okay, I am not going to spoon feed you. I have only guided you from where you can take the answer and you have to write it by yourself.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ हज़रत उमर्स फादर। हज़रत उमर के फादर का नेम क्या था, वो भी फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, उनका क्या नाम था। इन दिस पैराग्राफ 1, 2, 3, 4th लाइन में लास्ट। हिज फादर्स नेम वाज खत्ताब बिन नुफैल, खत्ताब इब्न नुफैल, ये उनके फादर का नाम था, ठीक है। एंड ही बिलोंग टू द आदि फैमिली ऑफ द कुरैश ट्राइब इन मक्का। आगे उनकी सारी डिटेल बताई जा रही है, आपको सिर्फ नाम पूछा गया तो आप फिर नेम उनका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिटरल आंसर विच यू कैन राइट फ्रॉम द टेक्स्ट आफ्टर रीडिंग इट केयरफुली, ठीक है। ओके स्टूडेंट, साइड बाय साइड डूइंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रीड द यूनिट अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अबव इन योर नोटबुक। ये जो अपनी मैंने क्वेश्चन सारे आपको पढ़ के उनके आंसर भी साथ साथ लोकेट करके दिखा दिया, आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से देख के अपनी बुक में नोटबुक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए नंबर 3, राइट अ बायोग्राफी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ बायोग्राफी इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू फॉलो द गिवन चेकलिस्ट। अभी आपको इसी चैप्टर में मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया था करने का तरीका, कि पहले आपने उसकी क्या लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, फिर हैबिट्स वगैरह सब कुछ उनको ध्यान में रखते हुए आपने इस बायोग्राफी को लिखना है। बायोग्राफी क्या होती है, सवाने उम्री, जो हम किसी की पूरी हयात के बारे में लिखते हैं कि कब वो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी हैबिट्स क्या थी, क्या क्या उन्होंने तालीम हासिल की, क्या कुछ उनके शौक थे, क्यों मशहूर हुए, और उनकी डेट ऑफ डेथ क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वही सारे रूल्स को फॉलो करने का तरीका बताया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐड फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ऐड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ट्रेड्स, हैबिट्स etc, यूज क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, यूज स्पेसिफिक वर्ड्स, विविड वर्ब्स, मॉडिफायर्स etc, add adequate supporting details, use appropriate pronoun, antecedent agreement and use appropriate transitional devices। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक बायोग्राफी लिखनी है जिसमें उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग ये काम कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स के ऊपर, और होपफुली यू विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी टू कंप्लीट योर वर्क। इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी and you can take help from internet and your grammar books। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह आप ये होमवर्क आप लोग कर लीजिए, फिर हम कल से नेक्स्ट अपना जो यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।